जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला सर। सर के साथ हमने पहले भी एक वीडियो किया है अबाउट लाइफ इन द इंडियन नेवी, जो आप लोगों को काफी पसंद आया। सो थैंक यू फॉर दैट लव एंड ऑल्सो फॉलोइंग अप ऑन द सजेशंस इन द कमेंट, वी डिसाइडेड कि हम एक और वीडियो बनाएंगे कि एसएसबी के ऊपर, सिंस सर हैज बीन द यंगेस्ट GTO and he has also been one of the founding members of SSB Kolkata board. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। Thank you so much, sir, for accepting my invitation. It's an honor and a privilege to talk to you. And we are really looking forward to this video. जब भी हम assessors के साथ मिलते हैं तो हमेशा it's a great interaction because that is straight from the horse's mouth. Because candidates तो अपना perception देते हैं what worked for them, but assessors बताते हैं behind the scenes की how does the selection procedure, what does the selection procedure really consist of. So thank you so much, sir. एंड मैं चाहता हूँ सर आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताइए बिफोर वी स्टार्ट। ऑल्सो गाइज, सर हैज अ यूट्यूब चैनल एसएसबी का, एसएसबी विद आईएसवी। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो तो आपको करना ही है। तो थैंक यू सो मच सर। Okay, so thank you so much, Simrat, for calling me on your show. I'm really glad that yes, we could find out this time and we are doing this for the benefit of the larger audience in our country. About me, okay, so my name is Lieutenant Commander Nikhil Kumar Chandrakala. I hail from a very small town called as Yavatmal near Nagpur, and I'm first in my clan to have served in the services. Born to a Rajasthani mother and a Maratha father, studied at NIT Srinagar. आजकल बहुत न्यूज में है NIT Srinagar because of Mr. Sonam Wangchuk, on whom the movie Three Idiots was made. I mean, the movie was inspired by him. So he's an alum of my college. So I studied in the same college, Rashtriya Pradyogiki Sansthan, electrical engineering, and then brief work stint at Tata Institute of Fundamental Research. And then I served in the Navy for 10 years and 6 years at sea and 4 years, almost 4 years as GTO. I was trained at NSB Coimbatore. In fact, मैं जहाँ से recommend हुआ था, I got recommended from NSB Coimbatore. As a part of university entry scheme, through this UES, SSC, GSX का पहले entry होता था, direct entry. तो अभी भी होता है UES नेवी में, SSC, GSX. तो I went for the first time ever. मैं अपनी जिंदगी में पहली SSB जो दी है वो मैंने NSB कोयम्बतूर में दी है, और मैं GTO भी वहीं बना। ग्रेट। एंड बाद में पता चला कि ऑप्शन एक ही है, दैट आई हैव टू गो एज अ कमिश्निंग क्रू, जो विच इज अ वेरी फौजी लिंगो ना, कमिश्निंग क्रू ऑफ SSB कोलकाता। तो मैं सीधे वहां से उठा के मेरे को उन्होंने कैलकाटा फेंका, विच वॉज अ वेरी बैरन लैंड, 26.71 एकड़ की जमीन, बैरन लैंड। उसको एक फुल्ली फंक्शनल बोर्ड कम नेवल बेस में सेटअप करना था। सो आई वॉज द फर्स्ट एवर GTO टू बी अपॉइंटेड देयर. Of course, the project director there was a GTO, but he was a project director and he was not just doing the GTO's job. And when I landed there, I was not only doing the GTO's job, but I was also doing, looking after the logistics and administration and supply chain and procurements and things like that. So, जो मेरा specialization है, because I come from the X branch. So, X branch people are specialists in
all these things. So, and I was immediately coming after relieving my command. So I was commanding warships in Bombay, commanding a squadron, ISB squadron. So that's why this integrated SSB virtues was because the ship that I commanded is called as an ISV, immediate support vessel. So I had to find an acronym, same acronym, Oh, different. great. Yeah, yeah. वो रहता है ना, एक बार तुम कमांड करोगे तो सक्सेशन बोर्ड पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा पीतल के अक्षरों में, और वो जिंदगी भर रहेगा जब तक वो वॉरशिप डिकमीशन नहीं होती, तब तक वो नाम लिखा रहेगा. बिल्कुल. तो सो या देन आई स्टार्टेड मेकिंग कैलकाटा देयर. 15 महीने लगे उस बोर्ड को बनाने में. Not only just the testing material and the GTO ground and the structures and the obstacle courses, but also the residential facilities of the officers, families, sailors, candidates mess, galley. ये जगह physical, the civil works in conjunction with the military engineering services. फिर then the division of the board की कौन कहाँ बैठेगा, कैसे चलेगा, कहाँ टेस्टिंग होगी, साइट टेस्ट, साइक हॉल्स, जीपी, स्टेज 1 का टेस्टिंग कैसे कराओगे. फिर उसके बाद में वो पूरा प्रोसीजर जो सेटअप होता है, इट इज गाइडेड बाय समथिंग विच इज कॉल्ड एज टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन बाय DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो नोडल एजेंसी है हमारे देश की. तो ये टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस खुद से बनाए थे, इन एग्जिस्टेंस सिंस 1950, रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स. बट ऐसे बहुत कम लोग होंगे ना, जैसे DIPR में कोई गया, उसने कोर्स किया, इंटरविंग ऑफिसर कोर्स किया, या फिर साइकोलॉजिस्ट का कोर्स किया, TO कोर्स जो बोलते हैं हम लोग, या फिर GTO कोर्स किया, जो कि बहुत ही धुआंधार कोर्स होता है. तो उसके बाद में हर कोई एक नया बोर्ड बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है. पीपल विल गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू एग्जिस्टिंग बोर्ड्स एंड सेंटर्स. देयर आर वेरी फ्यू, जो फ्यू द बोलते हैं ना, एकदम गिने चुने, जिन्होंने जलंधर बनाया, जिन्होंने कैलकाटा बनाया. और जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स है, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, ये तो बहुत पुराने हैं. तो इनके जो धुरंधर महारथी GTOs, IOs या TOs रहे होंगे, वो अब सिस्टम में नहीं है, बट वो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है. फिर बाद में यू डू माइनर एज ऑल्टरेशंस एंड एडिशन. बट स्क्रैच से सेटअप करना इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट. You follow the process laid down in the book, and you pick up best practices from each and every center in the country, including the Air Force boards. अच्छा, great. So yeah, सर, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड और स्क्रीनिंग और GTO की हम बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि वो कैसे दे कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज एज यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर. एंड ऑल्सो ये मैं अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई रन अ इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of every month. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना, सटल प्रमोशन कर रहा हूँ. लेकिन सर मैं चाहता हूँ थोड़ा ऑडियंस को वो बताइए कि कैसे they can work on their communication skills. देखो, ये एक लिमिटेशन है डेमोग्राफी की वजह से कि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. बट अनलेस एंड until that's your primary mode of communication, which becomes a part and parcel of your life when you're studying schooling, or let's say even in college, if it is not an inherent part within you, so to actually uh, build command over English language, it takes some time. The finesse in pronunciation, uh, the correctness of the grammar that you would use in your spoken English when you're speaking extempore. It's not extempore, it's extempore. So it takes some time ये आने के लिए. या तो वो सालों साल की मेहनत है, या तो फिर यू आर रियली एनग्रॉस्ड इन reading books and then having that inherent interest, attention and grasping power कि मैं कोई नया शब्द देखूं तो उसका मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिक्शनरी में उठा के देखूंगा. See, we are surrounded by information everywhere. You have so many apps, dictionaries available on phones, जहाँ पे खाली मीनिंग ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी पता चलता है. जरूरी नहीं, अब गूगल पे जाओगे तो गूगल पे तो वैसे ही पता चलेगा. तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका एक ही है कि बेसिक ग्रामर बिल्ड करे. मुझसे कोई पूछता है तो मैं जनरली यही बोलता हूँ कि रेन एंड मार्टिन इज द बेस्ट.
book to learn English grammar and composition. That's what I had learned. My mom was an English teacher, so I was homeschooled as far as English is concerned, and I studied at a convent, so it was very strict for us. And then second thing is read as many books as you can. That develops two things. कोई एक जॉनर पकड़ो कि मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिलिट्री, रोमांस, या फिर सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल और लेदर मेंटल हेल्थ, या फिर साइंस, टेक्नोलॉजी। कोई एक जॉनर पकड़ो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो एक तीर से दो निशान लगेंगे। तुम्हारा नॉलेज एंड स्किल सेट उस एरिया में इंप्रूव भी होगा, अंग्रेजी भी इंप्रूव होगी, विच इज अगेन फर्दर हेल्पफुल फॉर योर पीआई की फॉर्म। तो वो मेहनत डालना खुद से आना चाहिए, वो इंटरेस्ट, अटेंशन एंड ग्रास्पिंग पावर अंदर से चाहिए। थोड़ा सा कांस्टेंट, थोड़ा सा है ना वो। 20-22 साल में अगर नहीं हो पाया है जीवन में, 16, 16.5 साल, इन 90 इज 16.5, राइट, द लोअर एज। तो 16 दिन में या 16 महीने में तो हो सकता है, बट 16 दिन में हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से समंदर भरता है। तो यू हैव टू कीप डूइंग दैट। वहीं से ओरिजिनलिटी और वहीं से मेहनत और वहीं से डिटर्मिनेशन, फिक्सडनेस और पर्पस बाहर निकल के आता है। ये एफर्ट्स काउंट होते हैं, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, एफर्ट्स पहले काउंट होते हैं। Great. Guys, do check out our communication cohort. The brochure is in description, or WhatsApp number bhi you can enroll yourself starting from 1st May. Sir, moving forward, screening part पे आते हैं, because this is where the main जो कैसे बोलते हैं इसको, जो छाटना होता है, इट हैपेंस एट दिस स्टेज। सो सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे छाटते हैं, व्हाट आई हैव सीन। व्हाट इज द माइंडसेट जो होना चाहिए ऑफ अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग फॉर, हु इज सिटिंग फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट? तो आफ्टर ओआईआर जैसे हमें पता है कि पीपीडीटी टेस्ट होता है, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच असेसर्स आर लुकिंग एट जब तीनों असेसर्स सामने बैठे होते हैं डिस्कशन के दौरान? तो कैन यू टेल अस दैट? देखो, selection for stage 2 is a function of OIR as well as the on-the-spot conference that is conducted by all the three assessors. It's their own independent assessment of what they have seen in the discussion and also what they have read as a part of the stories that are written. अगर मैं स्टैटिस्टिकली देखूं इंडियन डायस्पोरा को, OIR 1 2 3 4 5 होता है, लोगों को पता होगा, ये बहुत नॉर्मल है ये चीज। 1 बीइंग द हाईएस्ट, 5 बीइंग द लोएस्ट, इट्स अ 5 पॉइंट रेटिंग स्केल सिस्टम। स्टैटिस्टिकली अगर मैंने 100 लोगों को प्लॉट किया इंडियन डायस्पोरा को, तो इट्स गोइंग टू बी अ बेल कर्व। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू फॉल एज OIR 3, वेरी फ्यू विल बी OIR 2, OIR 1 बहुत मुश्किल है मिलना, OIR 4 इज लाइक थोड़ा सा पुअर है, एंड OIR 5 मतलब बहुत ही रद्दी है। ऐसे लोग फौज में आते ही नहीं है, ठीक है, बहुत रद्दी है, ऐसे लोग फौज में आते नहीं, आने की सोचते भी नहीं है। ये डेमोग्राफिकली proven fact है over the last so many years of statistical data. And if I'm saying all these things, I'm saying this with conviction, क्योंकि ये सब चीजें स्टडी करने का मौका मिला था जब बोर्ड बना रहे थे। तो DIPR ने अच्छा। ये सब चीजें हैं, टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस, OIR सेटिंग, कैसे बनते हैं पिक्चर, ये सब सीखने मिला है along with the scientists. तो एंड देन आई ऑल्सो हैव अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो वो आगे बताऊंगा कैसे बनते हैं पिक्चर्स। एक तो हो गया OIR, तो बेसिक अगर वो पैटर्न रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी है ना, जैसे पहले होता था ऐसे कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के ना काफी सारे बुकलेट्स ऐसे खरीदने के लिए मिलते थे। तो अपने फ्री टाइम में ना, लाइक इन माय चाइल्डहुड, आई हैव हैड लॉट ऑफ एनकाउंटर्स विद वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट्स के बुकलेट्स, छोटे छोटे बुकलेट्स, बुक्स, उसको सॉल्व कर रहे हो। AIEEE की एग्जाम होती थी पहले, तो उसके अंदर एक तुम्हारा सेक्शन होता था मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। इट्स बेसिकली दैट सेम टेस्ट व्हिच इज OIR टेस्ट, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कुछ थोड़ा इधर उधर करके बनाए। तो जनरली यू विल बी OIR 3, मोस्ट ऑफ यू विल बी OIR 3। मोस्ट ऑफिसर्स हु आर सर्विंग इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वुड बी OIR 3, मोस्ट ऑफ देम। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है पिक्चर को देखने के बाद में स्टोरी कैसे बनाई है, वहां पे सारी कहानी छुपी है। अब क्योंकि ये परसेप्शन होता है, बिकॉज ये मोमेंटरी है, इसीलिए परसेप्शन है।
अगर मैंने परसेप्शन को अपरसेप्शन बोल दिया तो वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स टुगेदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट पीरियड इज बेसिकली योर एंटायर लाइफ टाइम। तो उसको मेरे को निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास में 52 मिनट है, 4.5 मिनट इंटू 12 जो भी है, आई हैव गॉट अबाउट 50-60 मिनट्स। बट अगर मोमेंटरली मेरे को चीजें चेक करनी है विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, इसी को बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन। तो व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरीज, व्हाट आई वांट टू सी इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ना तुम प्रॉब्लम नहीं, तुम सिचुएशन को डिफाइन करते हो। देयर इज नथिंग लाइक अ प्रॉब्लम एंड देयर इज नथिंग लाइक अ हीरो। एंड फिर तुम यू आर बी स्पोकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू बी स्पोक योर सेल्फ एंड यू ट्राई टू सेल योर सेल्फ सच दैट कि हाँ मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। Real life में an officer is the most humble and the most grounded person that you will ever come across, and very very practical, logical, with rationale, excluding the emotional factors. That's how officers think. So you need to have a definite situation where you have a definite task, where you are clear 1 2 3 4 5 ये मेरे actions है for a definite result, ये मेरे को result चाहिए, ये clarity of thought चाहिए। That's how you write the story: situation, task, action and result। ये बहुत क्लियर लेड डाउन एक प्रोसेस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब तुम उसके अंदर घुसे तो वो सिचुएशन मूविंग पिक्चर बन गया। उसके बाद में उसका डिलीवरी, तो कंटेंट प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ में नहीं होना चाहिए। बच्चे आते हैं, पिक्चर कुछ भी दिखेगा, ब्लर दिखने वाला है, स्टोरी तो मैं यही लिखूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये पिक्चर्स बनाए जाते हैं तो उनके मोस्ट लाइकली सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं ये लिखा जाता है। उसके Okay. ऊपर इट्स नॉट हाइपोथेसिस डिफाइन किया जाता है एज पर द डेमोग्राफी ऑफ द कंट्री। उसके हिसाब से टेस्ट, रीटेस्ट, वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के कोएफिशिएंट्स को डिफाइन किया जाता है। इनको टेस्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में ये हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हैं, उसके बाद ही इस पिक्चर को हम लोग यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ बैटरी ऑफ टेस्ट। तो अगर जो स्टिमुलस दिया है और तुम्हारा कंटेंट उससे बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा अलग है, तो assessors who are experienced sitting there, they would know that this is a preconceived idea. The first thing is, if you go with a preconceived idea, you are out. Second, स्टोरी का जो कंटेंट है वो एक डेफिनेट तरीके से फ्लो हो रहा है। मैंने बताया स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, वेरी वेरी क्लियर। what you would do in that particular situation needs to come out. It is a situation, it is not a problem. That's number one. तो ये हो गया स्टार। So content perception, mannerism, the manner in which you speak when you are giving your individual narration. So content perception, mannerism, confidence, expression, participation. Confidence is, mannerism and confidence are two disjoint sets. किस तरीके से बात कर रहा है, the tone and tenor, and the confidence of bringing that about in a group of 15-16 people that is there, because you're not supposed to address to the assessors, you're supposed to address to the group. So confidence, उसके बाद expression is grammatically correct English, written and spoken both. तो 5 out of 6, 83% of your assessment is individual narration. उसके बाद आता है participation. 20 मिनट के ग्रुप डिस्कशन में या 30 मिनट्स के इवेंट में 15 मिनट इंडिविजुअल नरेशन के, 15 मिनट डिस्कशन के है। अगर मैंने इक्वल प्रोबेबिलिटी से अगर इस समय को डिवाइड किया 15 लोगों में, तो एक आदमी को 6 से 8 चांसेस से ज्यादा समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता बात करने का। अगर फिश मार्केट सिचुएशन हो तो ये 6 to 8 गिर के 4 to 5 चांसेस में गिरता है। और मुद्दा ये है कि मेरे को कॉमन स्टोरी चाहिए, ना कि हु स्टोरीज टू बी एक्सेप्टेड। लोग ये नहीं समझ पाते। लोग ये करते रहते हैं कि मेरे मुर्गी की एक टांग, माई स्टोरी इज बेहतर, तो तुम इसी को एक्सेप्ट करो। बट ऑल दे हैव टू डू इज, you have to make a fictional story, no matter how fictional it is. It's a fictional star. What you're doing is, अगर 15 stars मेरे पास में आए हैं तो मैं constellation कैसे बना सकता हूँ उस चीज का। That is effective intelligence. On the spot, in the moment. ये लोग नहीं कर पाते। तो स्क्रीनिंग होना लक की बात नहीं है।
we are not there to reject people. We want as many people as we want because we are not bound by any fixed percentages. ये किसी ने लिख के नहीं दिया हम कि ये परसेंटेज है इतना ही सिलेक्ट करोगे, ये नहीं आता। एयर हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवी हेडक्वार्टर्स, ऐसा कुछ नहीं आता। बट सर ऐसा क्यों होता है फिर जो रिटर्न एंट्रीज हैं, जो नॉन रिटर्न एंट्रीज हैं, उनमें ऑटोमेटिकली सिलेक्शन जो स्क्रीनिंग रेट है वो और कम हो जाता है, और जो रिटर्न एंट्रीज हैं तो उसमें चाहे बच्चे कम आते हैं लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग उतना ही होता है। तो कोई तो एक फिक्स नंबर होगा जो बोर्ड के कैपेबिलिटी के हिसाब से कि हम इतने हैंडल कर सकते हैं बच्चे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सेंटर में है, सपोज आई हैव सीन सेंटर में, कॉलम में, इन माय करियर आई हैव सीन 900 प्लस रिपोर्टीज फॉर एनसीसी एंट्री। तो पहले तो स्क्रीनिंग करने के लिए 3 बोर्ड्स खड़े थे वहां पे, सारे के सारे एसएसएस, पूरा सेंटर लगा हुआ था कि स्क्रीनिंग में सारे आएंगे। और फिर सिंगल डे मॉर्निंग इवनिंग टेस्टिंग करनी पड़ी, ग्रुप टेस्टिंग। एक एक दिन में, एक एक दिन में 2-2 ग्रुप्स का ग्रुप टेस्टिंग हुआ है। ये भी किया है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि सेंटर की हैंडलिंग कैपेबिलिटी है या नहीं है। टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस जो गाइडलाइन है डीआईपीआर का, उसमें ये क्लियरली लिखा है कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ हैंड्स अगर कम है तो तुम लोगों को रोक के रखोगे, उन लोगों को राशन पानी, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, छत दोगे, और जब तुम्हारा पहला लॉट क्लियर हो जाएगा उसके बाद तुम दूसरे लॉट को टेस्ट करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो 5 दिन में ही करना जरूरी है। मैं चाहूँ तो 5 दिन रोक सकता हूँ और फिर उसके बाद में टेस्ट कंडक्ट कर सकता हूँ उन लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। मीन दिस मिथ नीड्स टू बी ब्रोकन कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, नंबर ऑफ हैंड्स है तो इसलिए ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं होता। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर कोई रिटर्न एग्जाम देकर के आता है ना, वहां पे ऑलरेडी एक यूपीएससी का फिल्टर लगा हुआ है, एनडीए या सीडीएसई का, या फिर आईनेट है या एफकैट है, तो वहां पे एक फिल्टर लगा हुआ है। ट्रेनेबिलिटी के 7 फैक्टर्स होते हैं। ओआईआर टेस्ट का स्कोर तुम्हारा, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इंसाइट, मोटिवेशन, एज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ये इंसाइट और मोटिवेशन जो है ना, रिटर्न एग्जाम में स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है। वो एक फिल्टर लगा हुआ है। बिना रिटर्न एग्जाम के जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि देख लेते हैं यहाँ नौकरी मिल सकती है क्या, ये एटीट्यूड होता है लोगों के अंदर। तो वो इनसाइट में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता, इसीलिए वहां पे वीडिंग आउट ज्यादा है। थोड़ा इनसाइट पे अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जबकि एक फिल्टर लग के आता है, तो वहां पे एसएसबीज को बोर्ड कंडक्ट करने में मजा भी आता है, क्योंकि वहां पे जोश टाइप लोग आते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनडीए एंट्री बहुत जोश टाइप होती है, सीडीएसई एंट्री बहुत जोश टाइप होती है। दैट्स अ वेरी वेरी फौजी लिंगो, जोश टाइप। ग्रेट। सर थोड़ा इस पे आते हैं स्क्रीनिंग अपना साइक पे, बिकॉज फॉर दोज हु डोंट नो सर इज अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी। सर आपने कुछ देर पहले बात की थी कि पिक्चर बनती कैसे है। कैन वी गो टू द साइंस बिहाइंड दैट, इफ इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल ऑफ कोर्स। ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ, डेप्थ में जाकर के नहीं बताऊंगा। बट ओके। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल, आई मीन सी, पीपल हु विल वॉच दिस वीडियो, उनका मुद्दा क्लियर होना चाहिए कि हमको रेकमेंड होना है। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना। अगर वो मौका जीवन में आया सर्विस के अंदर आने के बाद में, तो तब तुम लोग असेसर बन ही जाओगे। अगर वो मौका जीवन में आया और तुम लोगों ने वो कर दिया तो। बट देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रॉसचैक इंक ब्लॉट। एक टेस्ट हुआ करता था। फिर एक और टेस्ट है ड्रॉ पिक्चर टेस्ट। इन दोनों से एक डिराइव्ड टेस्ट है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसको फौज ने अपने तरीके से ट्रांसलेट किया हुआ है टू सैंडविच व्हाट इज द फैक्टर दैट आई वांट टू गेट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर पिक्चर। 4 फैक्टर्स है ओएलक्यूज के, 15 ओएलक्यूज है, 4 फैक्टर्स है। फैक्टर 1 2 3 4। फैक्टर 1 दिमाग, फैक्टर 2 दिल, फैक्टर 3 कितने गट्स है, फैक्टर 4 इज लिम पार। तो जब पिक्चर बनाते हैं तो वो इस चीज को सोच के बनाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर को ये दर्शाता है।
उसके बाद में यू आर testing that picture on a particular set of population and gathering the data points to see कि जो तुमने hypothesis लिखा है null hypothesis तुम उसको reject कर सकते हो क्या. These are statistical methods in psychology where you say कि I want to define a particular limit in terms of numbers and there are a lot of statistical analysis that I don't want to touch. उसके बाद ही ये पिक्चर को मैं ऐसे के वैसे यूज कर सकता हूँ या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, फिर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसको बैटरी में लगा सकता हूँ. अब क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन पर टेस्ट हो रहा है, तो 10+2 वाले जो बच्चे होंगे, क्योंकि उनका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है तो उनके पिक्चर्स अलग होंगे. क्योंकि उनका एज कम है, ट्रेनेबिलिटी ज्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा है, तो ट्रेनिंगबिलिटी ज्यादा है. सेकेंड, अगर ये ग्रेजुएट्स होंगे, ट्रेनेबिलिटी थोड़ी कम है, तो उनके पिक्चर्स अलग होंगे एंड विमेन एंट्री के पिक्चर्स अलग होते हैं. यहाँ तक कि ये एंट्री के लिए भी पूरा बैटरी अलग होता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी देर बहुत ज्यादा उम्र होती है लोगों की, तो रिजिडिटी इंडेक्स जो है पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा होता है. एंड सर इसमें जैसे सेल डिस्क्रिप्शन हो गया टेस्ट, तो शुड वी प्रिपेयर दैट बिफोर हैंड या वहां पे जाकर जो सिनेरियो है उसके बेसिस पे लिखें? व्हाट इज योर ओपिनियन? एंड ब्लैंक स्टोरी आल्सो, दोनों, सॉरी. Okay, see, I'll tell you. Blank story is an integration of all the 11 stories that you have seen. But my general advice when people come and ask me is that blank story is something which is your real life story, which you should write. And जो self description है, it is something, again, a corroboration of what has been written in TAT, VAT and SRT. Like for example, अगर TAT में ऐसा कोई picture है जहां पे लेट से कोई दौड़ रहा है, कहीं कोई रास्ते के ऊपर दौड़ रहा है, आजू बाजू में दिख रहा है कि दुकानें हैं, कुछ बिल्डिंग्स है, और एक बंदा दौड़ रहा है और दिख रहा है कि वहां पे कुछ एक गड्ढा वड्ढा, कुछ ब्लैक मार्क है, समथिंग, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, जनरली लोग क्या बोलेंगे, यार दौड़ता था, ये करता था, वो करता था, ऐसा किया वैसा किया, मैराथन में गया, कुछ किया, झंडे गाड़े, ये किया वो किया, फिर बाद में ही बिकेम अ वेरी गुड रनर, दिस दैट वो व्हाटएवर एक्सवाइजेड समथिंग. ओके, अब this is a picture as per me which is focused towards factor 4, determination, courage, stamina. ठीक है, अब एक वर्ड आया स्टैमिना, उसके ऊपर आपने क्या सेंटेंस लिखा, क्या एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस लिखा, स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट. तो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस क्या था, इस स्टोरी को बिल्ड करने में तुमने एक्शंस क्या लिखे, वो बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस क्या थे वो, और ये अभी वैट, टैट वैट. अब SRTI, suppose you were standing with your friend on a bridge, suddenly your friend falls down into the river. He dot dot dot. He was standing on a bridge with his friend, he fell down into the river, he dot dot dot. अब वो क्या करेगा, थर्ड पर्सन में. यहाँ जो एक्शन लिखोगे, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए. यहाँ पे कुछ भी अगर मिसमैच है तो वो तुम्हारा लाइंग इंडेक्स होता है. अब ये सब मैच हो रही है, SDT में क्या आएगा, कोरोबोरेट होना है ये सब चीजें. मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या बोलते हैं. मेरे माँ बाप मेरे बारे में ये बोलते हैं कि ही इज नॉट अवर्स टू टेकिंग रिस्क्स इन हिज लाइफ. वो ये बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज गुड, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज दिस, ही इज दैट. दे आर नॉट, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे. यू आर नॉट you don't bespoke yourself, you're not selling yourself. यहीं पे आधे से ज्यादा जनता मार खाती है. This is how you're supposed to build SDT. ठीक है, तो अगर PIQ फॉर्म के हिसाब से, PIQ फॉर्म का एक्सेस खाली साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को होता है, GTO को नहीं होता. तो PIQ फॉर्म के हिसाब से अगर अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को ये 12 स्टोरीज में ट्रांसलेट कर सकते हो, कैसे सोचते हो ये वैट में आ सकता है,
तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे टैट के एक्शंस के साथ में मैच हो सकते हैं एसआरटी में, तो एसडीटी पहले से प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ में लिखो कि ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेसेस है। वीकनेसेस को लिखने से शर्माओ मत। एवरीबडी इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज इफ एवरीबडी इज वेरी गुड देन एवरीबडी शुड बिकम एन ऑफिसर। वीकनेसेस तो मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी है। तो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। ये लाइंग इंडेक्स इज बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म। हम अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। इसका परसेंटेज जितना बढ़ता जाता है उतना प्रोबेबिलिटी घटता जाता है तुम्हारा रिकमेंड होने की। ओके। एंड सर इस पे आता थोड़ा जीटीओ वाला पार्ट जो है, बिकॉज योरसेल्फ ये तो आपका ही डोमेन है मतलब। सो जीटीओ नहीं, एक चीज सर मुझे आपसे पूछनी चाहिए, रियली आई एम रियली सॉरी आई फॉरगॉट। एक मिथ होता है कि आपका साइक डोजियर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है एंड ही आल्सो क्रॉस चेक्स, ऐसा कुछ है रियलिटी या इट्स जस्ट अ मिथ? ओके, एज पर टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ डीआईपीआर, यदि तीनों असेसर्स ने कुछ बहुत ही यूनिक चीज कहीं पे कुछ देख ली, आपस में इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड बिफोर द कॉन्फ्रेंस, इट इज अलाउड। क्या? तो अगर साइट ने कुछ उल्टी सीधी कोई बहुत ही ग्रेट चीज देख ली, तो वो जाकर के इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोल सकता है कि सर ऐसा कुछ गड़बड़ है। या इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कुछ देख लिया, उसको कंफर्म करना है तो वो साइट से जाके पूछ सकता है। जीटीओ को ओके। कुछ बताना है तो वो बता सकता है, ऐसा कुछ मनाही नहीं है। टेक्निकल इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है। अब बहुत ही तोड़ू कुछ होगा तभी जाकर के कोई कुछ बोलेगा, नहीं तो कोई कुछ बोलता नहीं है, सीधे कॉन्फ्रेंस में जाके डिस्कस करते हैं। आपने ऐसा देखा है कभी होता है? बहुत बार देखा। कोई एक चीज बता सकते हो कि क्या तोड़ू एक चीज थी बंदा वो? है जिसका लाइन इंडेक्स बहुत सॉलिड था, लेकिन बहुत ही तोड़ू इंटरनेशनल प्लेयर था। ओके। एंड उसके सेंस ऑफ ओनरशिप में कुछ गड़बड़ लग रहा था। ऑल्दो वो भारत को रिप्रेजेंट करके आया इंटरनेशनल लेवल पे, ओके। and काफी झंडे गाड़े उसने, लेकिन मॉरल करेज में कहीं पे डाउट लगा। मॉरल करेज इज एन इंडेक्स ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर 2। वो ओके। फिजिकल करेज नहीं होता, मॉरल करेज है। ओके। तो साइकोलॉजिस्ट को लगा मॉरल करेज में कुछ गड़बड़ है, बुलाया उसने कैंडिडेट को। इंटरव्यूइंग अच्छा। ऑफिसर अभी तक कैंडिडेट को बुलाया, अभी बैठा है, उसको 10-12 एसआरटीज दी सॉल्व करने के लिए। और फिर बाद में उसको भगा दिया। अगले दिन कॉन्फ्रेंस में जाके सीधे नो, वीटो पावर, नो मतलब नो, खत्म कहानी, फिनिश्ड। ओके, तो फाइंड आउट, साइकोलॉजिस्ट के पास वीटो पावर रहती है? तीनों के पास वीटो पावर होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ ओके। एज एंड सीनियरिटी। सो आई माइट बी सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस विद अ मेजर जनरल, इन अ ओके। सेंटर मेजर जनरल इज द बॉस, ओके। इज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो अभी पहले ऐसे होता था कि सेंटर कमांडेंट इज आल्सो अ बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द बोर्ड्स, बट अब नहीं है। अभी चीजें थोड़ी चेंज हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। मेजर जनरल इज एन इंडिपेंडेंट पोस्ट and he can supersede in any board and can take interviews from any board and go and preside the conference of any board, ये भी कर सकते हैं। things are changing now। तो एज हैपेंड ओके। विद ईयर आर्मी कॉन्फ्रेंसेस में मेजर जनरल बैठा है अकेला, मैं सफेद वर्दी पहन के बैठा हूँ, बाकी सब ओजी पहन के बैठे हैं। एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट जी, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 28 साल का एक्सपीरियंस। मैं तो टोटल एक्सपीरियंस ही 8.5 साल है। एंड मेजर जनरल जो मेरी उम्र है उतना तो उसका एक्सपीरियंस था। बैठा है वहां पे, मैंने बोला नहीं, नो वीटो पावर, ही डज नॉट हैव अ राइट टू क्वेश्चन मी व्हाई इज द जीटीओ सेइंग नो। नो मतलब नो होता है, इट्स अ स्टेटमेंट, नो, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं, एक्सक्लेमेशन होता है। ग्रेट। सर जीटीओ वाले पार्ट पे आते हैं वापस से। लेक्चरेट, जीडी, इन ये दोनों में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कैंडिडेट की? देखो, जैसे ही मैंने बोला ना कि अगर 20 मिनट बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसी करना, तो अगर 20 मिनट की बातचीत है तो 6 या 8 चांसेस से ज्यादा मौका नहीं मिलता मुंह खोलने का। तो वहां पे कोई जनरल नॉलेज और जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पे तुम्हारा क्या होल्ड है वो चीज चेक नहीं हो रही, कुछ और चेक हो रहा है। हाउ यू आर ओके। बिल्डिंग द पल्स ऑफ द ग्रुप, एंड देन हाउ यू आर बिल्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रुप ओवर अ पीरियड। इसी को ग्रुप इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड स्टेबिलिटी with respect to time over a period. Assessment happens only when the task or the test is on and not what you do before, after or in between. So this is applicable to all the group situational tasks. Group test नहीं होता, group situational task होता है।
तो ये एप्लीकेबल साइट टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। अगर ये टोटल मारोगे द टाइम दैट यू स्पेंड ओनली ऑन द असेसमेंट, इट इज नॉट मोर देन 12 to 13 hours आउट ऑफ 120 hours दैट यू स्टे इन द बोर्ड। 12 घंटे का टेस्टिंग है, 12 से 13 घंटे का 5 दिन में। उसमें से सबसे ज्यादा समय आप जीटीओ ग्राउंड में बिताते हो। वो जीटीओ ग्राउंड में जो समय बिताते हो वो खाली इस चीज को लेकर के है कि आप ग्रुप का लेवल कैसे बढ़ा रहे हो, लेवल ऑफ फंक्शनिंग कितना ऊपर ले जाकर के ग्रुप को खींच सकते हो कि ऑपरेट एट अ हायर लेवल, एट अ हायर मेंटल लेवल। सोच। तो ये बिल्डअप होना जीडी से स्टार्ट होता है और एफजीटी पे जाके खत्म होता है। तो साइलो बेस्ड असेसमेंट नहीं होता कि मैंने लेक्चरेट में बहुत अच्छा लेक्चर दिया तो मैं रेकमेंड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड ऑल द टास्क राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगिनिंग। तो जीडी में तुम्हारे पास में कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं है, इट्स ए इंडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क। एंड lecturate में you have a dedicated authority to talk. How do you influence the group members? Ability to influence the group. Factor 3 में ऑप्शन क्वालिटी ये चेक करोगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलोगे, मुद्दे की बात करोगे, 100 सोनार की 1 लोहार की जलेबी नहीं बनाओगे, टू द पॉइंट बात करोगे, तो ऐसे लोग इज्जत कहीं पे भी पा लेते हैं। चाहे एसएसबी में आए या फिर कहीं पे भी बैठ के बात कर रहे हो, ओवर अ कप ऑफ टी और कॉफी इन एनी रेस्टोरेंट विद एनी काइंड ऑफ इवेंट। द कैच इज यू आर एबल टू स्पीक एक्सटेम्परी and the knowledge level to support your logic or the pattern that you see is there at the back of your mind, at the behest of your brain. अगर ये कर सकते हो, then only people whom you are going to command in future, they are going to listen to you. Otherwise, why should they put their life in danger on your commands? Think about it that way. That is how GD works and lecturate works. So SSB is a very, very miniaturized form of what you are going to face in your real life as an officer. उसका एक ही माइक्रो पीको फेम्टो एटो लेवल पे बिल्ड किया हुआ एक स्ट्रेस इंड्यूसिंग टेस्टिंग मैकेनिज्म है, where people are exposed to volatile, uncertain, complex and ambiguous situations, and all that we do is we record their responses, first response that comes out of them. Every second response or every consecutive response after the first response is going to be masked with defense mechanisms, which we discount. We want first response. यही जीटीओ में बैठ के लिखता रहता है 8 घंटे तक, उसके बाद असेसमेंट देता है जाके कॉन्फ्रेंस में, ये ऐसा है और ये बंदा वैसा ही है, पैटर्न। तो जीडी के लिए प्रिपेयर करना है। पिछले 2 महीने में क्या चल रहा था, 3 महीने में क्या चल रहा था देश विदेश में, ये चीज अपने दिमाग में डालो। उसके कार्डिनल चीजें तुमको पता होनी चाहिए। मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देता हूँ तो बोलता हूँ 6 wives 1 husband, what, where, which, when, why, who and how। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि today's 5 hot lectured topics, ऐसा कुछ नहीं होता। लेक्चरेट वो होता है जो तुम्हारे इर्द गिर्द चल रहा है। इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन जॉब्स, माई डॉग, माई फेवरेट टीचर, इंडिया स्पेस प्रोग्राम। बैठे बैठे मैं ऐसे 500 लेक्चरेट टॉपिक बना दूंगा। ऐसे ही बैठ के मैंने वहां बनाए थे लेक्चरेट कार्ड्स कैलकाटा में, ऐसे ही ओके बैठ के बैंगलोर में भी बना दी। सर, लेक्चरेट कार्ड्स में मैंने देखा, नोट किया, आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो एज अ कैंडिडेट पर्सपेक्टिव देखा कि एक टॉपिक बहुत ही आसान होता है, फिर 2 थोड़े मुश्किल, फिर एक बहुत ही मुश्किल। सो इफ दिस इज करेक्ट, देन विल वी बी जज्ड इफ वी चूज द इजियर टॉपिक, बिकॉज आई स्पोक ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए मुझे आपसे सेगमेंट पूछना हो था गया ना एक तुम, एनडीए तो गया था ना। बार। So it is about how much interest can you generate in the group when you have ओके dedicated authority, and what is your contribution, a remarkable difference in your contribution to the group when you have been given dedicated authority, and we correlate that with your performance in GD, जो हमने लिख के रखा है GD में। जीटीओ कुछ लिखता है, वो जो लिखता है वो बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस लिखता रहता है जीटीओ।
कि Okay. हमारे बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे कैसे थे और वहां पे कैसे, और कितना रिमार्केबल डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर कंसिस्टेंसी में कहीं पे भी ऊपर नीचे गया तो दैट इज योर लाइंग इंडेक्स। जितना ज्यादा लाइंग इंडेक्स, उतना ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म, उतना कम तुम्हारा प्रोबेबिलिटी टू गेट रिकमेंडेड। दिस इज हाउ असेसमेंट वर्क्स। साइलोज में कुछ नहीं होता। मैं देखता रहता हूँ ये यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, हाय माय नेम इज सो एंड सो, आई एम 5 times recommended and today's 5 hot lecture topics are so and so. And then if I am drinking tea, I like to take it, I'm like, I puke it out because I'm laughing on everybody. Why are you doing things like this? You don't need to do things like this. It's a very simple thing. Yes. टॉपिक एक लो लेवल है, उसको हम लोग बोलते हैं बिलो एवरेज। दो एवरेज लेवल के टॉपिक्स। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा अपने बैचलर्स या अपने 10+2 के करिकुलम को छोड़ के क्या पढ़ता लिखता है, उसी से उसका स्किल सेट डिफाइन होता है। बैचलर्स में क्या पढ़ा, मास्टर्स में क्या पढ़ा, या फिर 10+2 में क्या पढ़ा, उससे उसका खाली टेक्निकल एक्यूमेन और टेक्निकल रेज्यूमे डिफाइन। मैंने बीबीए किया है, बीटेक किया है, इंजीनियरिंग करी, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, जो कुछ भी किया, ये मेरा टेक्निकल स्किल सेट है जो मेरा रेज्यूमे लिखता हूँ। मेरे को मैटलैब आता है, सिमिलिंक आता है, सप्लाई चेन आता है, मैनेजमेंट आता है, डिमांड प्लानिंग, बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सो एंड सो इंजीनियरिंग, ये टेक्निकल एक्यूमेंट। इसके अलावा मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ और जो कुछ भी मैं करता हूँ ना, वो मेरा स्किल सेट है। ये स्किल सेट तुम्हारा एसएसबी में चेक होता है, ये नहीं चेक होता। ये तो चेक जिसको करना था उन्होंने कर लिया ना, और तुम लोगों ने मिनिमम क्यूआर मीट कर दिया, करेक्ट? एंड दैट्स हाउ यू हैव कम टू गिव द एसएसबी। हु एम आई टू क्वेश्चन दैट थिंग? या तो यूपीएससी ने एक बार लगाया, यूपीएससी ने बार लगा के तुमको यहाँ पे भेजा, या तो सर्विस हेडक्वार्टर्स ने मिनिमम क्यूआर सेट करे, तुम लोगों ने वो मीट किया और तुमको एसएसबी का कॉल आया। तो एसएसबी को इससे कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकल एक्यूमेंट जो तुम्हारा रेज्यूमे है, एसएसबी को रेज्यूमे के बाहर की जो चीजें स्किल सेट है ना तुम्हारी, उससे लेना देना है कि तुम टेबल पे क्या लेकर के आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब सोच के देखो, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज, 3 टाइप के टॉपिक्स। अगर अबव एवरेज टॉपिक है तो उसका मतलब है कि तुम्हारा जो स्किल सेट है इन इस दायरे के बाहर, टेक्निकल एक्यूमेंट के बाहर का। मतलब हाँ यार, पढ़ता लिखता है बट बोलना नहीं आता, मैनरिज्म बकवास है, तो कैसे ऑफिसर बनाऊंगा? तो ऐसे बहुत आईआईटीएंस देखे हैं मैंने, आईआईटीएंस को वापस भेजा है, एनआईटीएंस को वापस भेजा है, आउट, नॉट रिकमेंडेड। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत प्यार से बात करेंगे, माय डॉग, अपने खुद के डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भूल रहा हूँ 2.5 मिनट खत्म होने वाला है, घंटे भर में मैं सुन रहा हूँ यार क्या बोल रहा है ये, एंड आई एम, सच पीपल गेट रिकमेंडेड बिकॉज दे कैन होल्ड द पल्स। अगर ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का सिचुएशन बेस्ड टास्क में तुम पल्स होल्ड नहीं कर सकते, तो कल्चर के 100 बंदे जो तुम्हारे पीछे खड़े होने वाले हैं, या फिर बोलते हैं ना सर, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, एक प्रहार जो पीछे खड़ी होगी, सॉरी आई मीन मार्कोसिस प्रहार, तो वो बंदे क्यों जान दांव पे लगाएंगे तुम्हारे बोलने पे? बताओ, व्हाई? बिकॉज यू आर एन ऑफिसर, शुड बी एबल टू होल्ड द पल्स। इसी को ग्रुप टेस्टिंग बोलते हैं। रस्सी फट्टा बल्ली इज जस्ट अ टूल। कल चल के मैं अब्बा चप्पा डब्बा बना दूंगा वहां पे कुछ चेंज करके, विच वी हैव डन इन कैलकाटा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। चेयर पे बिठा के ग्रुप टेस्टिंग कैसे हो सकती है, ये भी करके देखा है हम लोगों ने। अब बताओ, रस्सी फट्टा बल्ली को चेंज करके अब्बा चप्पा डब्बा बना दिया तो 5-6 क्यूबॉइड्स और ट्रायंगल्स और स्फीयर्स बना देते हैं और कुछ चेंज कर देते हैं। स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन की जगह बड़ा सा सर्कल बना देते हैं, उसके अंदर ABCD कुछ बना देते हैं, यहाँ से वहां जा, वहां से वहां जा, वहां से वहां जा। हट गया, रस्सी फट्टा बल्ली कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया एसएसबी की हिस्ट्री से। फिर क्या करोगे? एंड दिस इज हैपनिंग। आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, पूरा भारत देखने वाला है इस चीज को। तो इसीलिए रस्सी फट्टा बल्ली इज नॉट गोना मेक यू एन ऑफिसर। मैंने अपने करियर में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं ना, मतलब अव्वल दर्जे से पास किया मैंने, क्योंकि कभी ऐसे बंदे देखे ही नहीं थे। एंड दे आर लाइक, हमें एसएसबी के बारे में कुछ नहीं पता, हम यहाँ पहली बार आए देने के लिए।
सर थोड़ा आपका मोस्ट फनी इंसिडेंट इफ यू वुड लाइक टू शेयर, जो सबसे फनी एस्पिरेंट या आपने कोई जिससे इंटरेक्ट किया हो एसएसबी के दौरान। आई टेल यू, एक बंदा था 10+2 टेक बीटेक एंट्री में आया था नेवी के। ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। फिट बंदा था, अच्छा खासा। लोकल स्कूल में कहीं पढ़ा था, चेन्नई के आसपास कहीं पे। दिस गाय केम एंड मैं देख रहा हूँ कि जीडी से स्टार्ट किया है। बंदे के फंडे बहुत क्लियर है। वो फिश मार्केट सिचुएशन में इज लाइक, ए मैन, व्हाई डू यू वांट टू फाइट या व्हाई डू यू वांट टू शाउट? डोंट शाउट, नो। व्हाई, व्हाट विल यू गेट बाय शाउटिंग ऑन अस? जस्ट टॉक, ओके? एंड तमिलियंस हैव अ डिफरेंट नैक ऑफ टॉकिंग टू पीपल। वो लोग जब बात करते हैं ना, व्हेन दे वांट टू स्टॉप द नॉनसेंस, दीज गाइज आर वेरी क्लियर हाउ टू स्टॉप द नॉनसेंस। उसके इनहेरेंट, उसके डीएनए में इनबिल्ट था वो। तो बंदा है, मैं देखे जा रहा हूँ भाई ये बंदा कर क्या रहा है। पहले तो मुझे लगा कुछ शो ऑफ टाइप होगा, फिर बाद में वही चीज जीपी में, फिर वही चीज पीजीटी में। तब बारिश होने लगी, कैलकाटा में बारिश हो रही थी पीजीटी के टाइम। अब हम तो छाता लेके खड़े, हमारे पीछे हमारा, सो यू नो द ग्राउंड्समैन इज लाइक अ सहायक ऑल्सो, तो छाता लेके खड़ा है क्योंकि जीटीओ लिख रहा है। अब वो पीछे पीछे ग्राउंड्समैन चलता रहेगा, अब वो मेरे पीछे खड़ा है। मैं वहां पे देख रहा हूँ उसको। अब वो मिट्टी में कीचड़, पानी, बच्चे सफेद कलर का कपड़ा पहन के। सो अब वो बंदा जब सोल्यूशन बनाने के लिए कुछ कर रहा था ना, जिगिर गुगरी वहां पे हाथ में, तो वो गया। जो वहां पे एक बंदा सामने अपने आप को कुछ शो ऑफ करने वाले बुली थ्रस्टर्स भी होते हैं ना, जिन्हें नहीं पता लेकिन चिल्लाते रहते हैं, मैं कैंटिलीवर कैंटिलीवर। बट कैंटिलीवर होता क्या है वो पता नहीं है, बट कैंटिलीवर कैंटिलीवर करते रहे। ये बंदा पीछे खड़ा था, तो उसको बोलता है, चेस्ट नंबर शायद 7 था, ये बंदा 3 था। आई रिमेम्बर दिस गाय वेरी पिक्यूलियरली। एसएसबी कोलकाता का पहला बीटेक एंट्री का बैच था ये। तो बोलता है कि ए चेस्ट नंबर 7, इफ यू कीप डूइंग लाइक दिस, नो, we'll all get wet here completely. Anyway, we are half finished. You come back. I have to do this. Anyway, GTO said this, said he, we can exchange the places. तो चिल्लाया उसके ऊपर। वो गया आगे, बोलते दिस इज हाउ यू डू इट, ऐसे ऐसे करके कुछ जिक्र विक्र किया। नाउ गो वॉक, ओके, बिफोर यू वॉक आई विल ओनली वॉक एंड आई विल शो यू दिस इज हाउ इट विल बी डन, यू कम। द टिपिकल वे तमिलियंस टॉक। वो खत्म कर करके आया, उसने पीजीटी में पूरा नेविगेट करके पूरे ग्रुप को खींच के लेकर के आया। उसके बाद में जब कमांड टास्क आया अगले दिन, फिर बारिश हुई। तो जो हेल्पर्स उसके थे ना, ठंड लग रही थी एंड सम शिट वाज हैपनिंग। तो दिस गाय स्टैंडिंग, झूला उगला था उसमें, रोटेशन स्टॉप करना है तो कहीं बल्ली फंसानी पड़ेगी, अब सब गीला है, फिसल रहा है, कीचड़ है। वो बंदा वहीं खड़ा है। वो बंदा बोल रहा है, ए इफ यू कैन नॉट डू ना टेल मी, आई विल सेंड यू बैक, आई विल कॉल समवन एल्स। फिर उसने ऐसे बोला। फिर बाद में बोलता है, नो 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 कमांडर, विल डू इट। वो अब वो उसके ऊपर चिढ़ गया, तो वो उसको कुछ जवाब दे रहा है। बोलता है, ओके यू डू वन थिंग यार, यू कम बैक, आई विल ओनली डू इट। वो खुद ही जाके उसमें लगाने लगा, और दूसरे को बोल रहा है, यू जस्ट होल्ड इट फ्रॉम हियर, आई विल ओनली टाई द रोप, ओके यू डोंट वरी। तो दिस गाय केम, ओके, ये सब खत्म हुआ। मैंने इसको अव्वल दर्जे से पास किया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे नंबर किसी को नहीं दिए थे तब तक, ऐसे जिंदगी में नहीं दिए थे। आई हैड सीन सम थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स टिल देन, मैं दिए नहीं थे। मैं पहुंचा कॉन्फ्रेंस में, अब पहला नंबर जो बोलता है ना वो जीटीओ बोलता है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट बोलता है, फिर इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है। मैंने अव्वल दर्जे के नंबर दिए, साइकोलॉजिस्ट ने एकदम ही आधे दिए थे, और इंटरव्यू ऑफिसर ने मेरे से भी ज्यादा नंबर दिए थे। अच्छा। अब मैं वहां बैठा, तो जो सबसे कम नंबर देता है ना, वो पहले बोलता है उसको प्रॉब्लम क्या है। नाउ दिस गाइस नॉट स्टॉपिंग स्टॉपिंग इज लाफ, वो हंस रहा है साइकोलॉजिस्ट, ही जस्ट लाफिंग कि हुआ क्या है। तो मैं और इंटरव्यू ऑफिसर बाजू में ही बैठे थे एज द फर्स्ट। तो दो ही जीटीओ थे, तो सीनियर मोस्ट जीटीओ विल ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू द आईओ। तो एंड बाकी के जो बाहर के सेंटर के जीटीओ आते हैं तो फिर वो साइड में बैठते हैं। तो सेंटर का जीटीओ जो होगा वो पहले बैठता है। तो मैं इंटरव्यू ऑफिसर पूछ रहा हूँ, क्या करना है सर, ये अगर ड्रॉप कर देगा तो? ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इसके जैसा तो ओरिजिनल बंदा मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। इंटरव्यू ऑफिसर भी बोल रहा है उसको, ये सोच मत, कम अप कर जा, इससे अच्छा बच्चा मिलेगा नहीं तेरे को, नॉन कोस्ट बंदा है एकदम। एंड वी आस्क्ड हिम व्हेन ही केम टू द कॉन्फ्रेंस ना, तो कॉन्फ्रेंस ने पूछा
बेटा तूने कहीं कोचिंग वोचिंग ली थी क्या? तो बोलता है नहीं सर, आई कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग ओनली। उसका पप्पा ना ऑटो रिक्शा चलाता है। 90-95% CBSE क्लास 10th क्लास 12th, तगड़े नंबर, पढ़ाई लिखाई। दो बहनें हैं, उनको भी पढ़ाता है, उनके भी नंबर अच्छे आते हैं। और बाप ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। ठीक है, एंड ही इज यन्ना रास्कला टाइप्स, बिल्कुल एकदम रजनी फैन। कड़क बंदा, बिल्कुल फिजिकली फिट। और एकदम जोश टाइप तो छोड़, बबली ना, एकदम हमेशा स्माइल करते रहने वाला। कब भी नहीं देखा मैंने ऐसा बंदा अपनी लाइफ में। अव्वल दर्जे से पास करके उसको भेजा हम लोगों ने। पक्का ऑफिसर बन गया होगा अभी तक तो। वेरी फनी गाय एंड अमेजिंग गाय। Great. Sir, are girls better than boys in terms of result of SSB? Because मैं देख रहा हूँ जो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि how are girls performing better than guys in SSB? Like, देख is सर, there ये some natural trait? लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर देखा जाए तो women are programmed wired differently than men. उन लोगों को अगर कुछ प्रूव करना होता है ना, तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रूव दैट यस दे आर देयर। मतलब उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है इंटरनली अगर देखा जाए तो। इट इज लाइक जस्ट ओपनिंग दैट गेट ऑफ द डैम, वो खुला ना, तो दे आर लाइक, दे कैन बिकम वेरी गुड लीडर्स। एज फार एज अ फौजी ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सेंस ऑफ ओनरशिप जो होता है वो इन जनरल बहुत बेटर होता है विमेन कैंडिडेट्स में। दे आर प्रोग्राम दैट वे, दे आर वायर्ड दैट वे। ओनरशिप के मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो ये वोकेशन और ये प्रोफेशन को चूज करते हैं उन लोगों के बारे में स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं। आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग एंड डोंट कोट मी ऑल्सो एनीवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट एसएसबी। तो एज असेसर्स व्हाट वी फील इज थोड़ा दिमाग कम है, बट सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मेहनती है और लॉयल है। ऐसे बंदे को हम लोग सिलेक्ट कर लें। Okay. थोड़ा दिमाग कम भी रहेगा, नॉलेज लेवल्स कम भी रहेंगे, जियो पॉलिटिकल चीजें नहीं भी पता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओनरशिप बहुत ज्यादा और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज लेवल्स तो तेरे को भी पता है ना, देयर आर सो मेनी ट्रेनिंग स्कूल्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एनीवे आफ्टर यू गेट कमीशन, बिफोर वी कैन ऑपरेशनलाइज एन ऑफिसर इनटू एन ऑपरेशनल ड्यूटी एंड अ रोल इन अ यूनिट, ही हैज टू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो मारपीट के उस्ताद उसको समझा ही देगा, ट्रेनिंग ऑफिसर तो उसकी खाल उधेड़ देगा अगर रिटर्न एग्जाम में ढंग के नंबर नहीं आएंगे। सिखा तो उसको देंगे हम लोग। दैट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज। Great. So on that note, thank you so much, sir, for accepting our invitation. आपसे बात करके काफी अच्छा लगा and it was a great conversation. सर, जाने से पहले any last message to the aspirants out there जो prepare कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी stage पे they are still missing out, whether it be written, screening, conference. तो any last message for the aspirant out there? देखो एसएसबी ना एक ही मंत्रा पे चलता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा। इसका एक्चुअल मतलब क्या है बताता हूँ। व्हेन योर मनसा वाचा कर्मणा, व्हेन दे सिंक, अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स फियरलेस एंड लिमिटलेस। ये सिंकिंग जो है ना, अंडर स्ट्रेस होना चाहिए। तो एसएसबी का काम है तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस डालना, और तुम्हारा काम है डू नॉट लूज द कूल, नीदर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन नॉर बिकॉज ऑफ द पीपल। एब्सोल्युटली कूलनेस इन एक्शन एंड कामनेस इन क्राइसिस, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अब ये एक्शंस को बाहर निकालने के लिए दो तीन चीजें हैं। रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज होना चाहिए, वाणी, बोलते आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर कुछ कम ज्यादा है तो हाथ से एक्शन भी नहीं हो पाएगा, तो ये मनसा वाचा कर्मणा सिंक नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इम्बैलेंस है ना, तो ही तुम लोग रिकमेंड नहीं होते। अगर यहाँ बैलेंस है अंडर स्ट्रेस, तभी रिकमेंड होते। तो आई वुड जस्ट से दैट कि understand the concept as far as GTO ground is concerned. You don't really need a physical GTO ground, ऐसा मेरा मानना है।
uh, after having set up on board and then more than 12,500 assessments in my career as a GTO, stage 1, stage 2 सब पकड़ के army, navy, all entries, and read as much as you can outside your domain, technical acumen के बाहर. Hop, skip, run, jump, play, sweat every day. Try to keep yourself fit. 21 push-ups and 25 sit-ups is good enough. फौज भी इतना ही करवाती है, उससे ज्यादा तो करवाती भी नहीं. पीटी का यही टेस्ट होता है, बेसिक. इतना कर लोगे, 2.4 किलोमीटर दौड़ो 10 मिनट के अंदर. द प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू टू अचीव दैट स्टैंडर्ड की 10 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर खत्म होना चाहिए. दैट विल ओनली मेक यू फिट. वो प्रोसेस विल मेक यू फिट टिल द टाइम यू अचीव दिस स्टैंडर्ड. तो इतना अचीव कर लो, और पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ एक जॉनर पकड़ के जो तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल है उसको पढ़ो. ग्रो योर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज and do not fear neither the assessors nor the people that you come across at the board. Don't show off. Show off नहीं करने का. Be grounded, humble. You will become an officer. आराम से बन जाओगे. Great. Thank you so much, sir. And on that note, guys, please like, share, subscribe, and इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, so that they are also able to hear this wonderful conversation. Do check us out on Spotify as well and give us a 5-star rating. Last but definitely not the least, जो आप सबके लिए कंपलसरी है, SSB with ISV करके YouTube चैनल है. I have tagged them in my title, and also link is in description. Do check it out, and also sir को तो आपको follow करना ही है Instagram पे. Thank you so much, sir, and we are really looking forward to our next conversation. जब भी in future हम collab करेंगे, and it's always a pleasure talking to you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Simrat, for calling me on your show. More power and more success to you. And I hope Thank you so much. most myths break with respect to the SSB that are floating in the market. Yeah. बिल्कुल sir, बिल्कुल they will. Thank you so much.